Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 27th August 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper for our examination, for prelims and for mains purpose. So let us see one by one these article. On page number 6, first article by Krishna Kumar, the former director of NCERT. As previously we have told you, some writers and their articles are very important. We have to consider their views here, and one of them is Krishna Kumar, and he generally writes on school education. Okay, so since the NEP, National Education Policy 2020, has been announced, he is writing, this is the second article, and in both article he has criticized the initiative of preschool education और प्री-स्कूलिंग. ठीक है, जो चेंज करके जो आया हुआ है NEP में, ठीक है, कि जहाँ पे हम 3 साल के बच्चे को एडमिशन करवाएंगे प्री स्कूल में, ठीक है, वहाँ से उसका एजुकेशन का जर्नी शुरू होगा अभी. ठीक है, नाउ दिस इज़ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे था कि 6 एज के बाद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर करेगा. ठीक है, और वहाँ से जो होगा उसका वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंसिडर होगा. राइट, नाउ फ्रॉम द थर्ड year of the, let's say, child, now they are going to be entering into formal education system. ठीक है, तो वो एक्चुअली जो प्री स्कूलिंग का जो 3 साल का कंसेप्ट उन्होंने बताया है NEP में, दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय कृष्णा कुमार. और आपको ये क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं कि जनरली ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा प्री स्कूलिंग के, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेप मानी जा रही है. However, आपको दूसरी साइड पता होनी चाहिए कि what is the criticism. Okay, so let us try to understand here. Okay, so an overall also carries an association with radical improvement. Machines improve quite radically after an overall, but social systems like education behave more like living beings, as they carry legacies and tendencies rooted in the wider social ethos. So very good statement that can be written in essay paper also. One significant shift in NEP proposes is in reorganization of elementary education. This is the point they are talking here. It starts a child's education journey from the age of 3 instead of 6, with 3 years of preschool education. The overarching focus on this initiative is on making children school ready in the context of reading, writing and arithmetic. This is what called as foundational literacy and numeracy in the NEP. Okay, so the focus of the NEP here in preschooling aspect is ensuring foundational literacy and numeracy, so that child ensures good educational outcomes in the school curriculum. Fine. However, the article is talking about the reality, ground reality, that reading without relating to the text or to its author is far more common than using one's ability to read in order to make sense of the text. Okay, despite education, many literates develop no interest in reading. हम देखते हैं कि हमें बचपन में रीडिंग तो सिखाया गया रहता है, बट रीडिंग किसी की हॉबी नहीं होती है जनरली. ठीक है, बड़ा होने के बाद. ठीक है, तो साइंस और फिर मैथ्स और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, and then they do not enter into, let's say, literary career, जो आर्ट्स वाला जो हम बोलते हैं, या फिर लिटरेचर का जो बात होती है. ठीक है, तो उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है रीडिंग में, क्योंकि वो सेंस ऑफ द टेस्ट ये उनमें डेवलप ही नहीं होता है. ठीक है, वो मैकेनिकली रीड करते रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स रीड करना, उनका मीनिंग जान के लेना. फाइन. So writing is basically means of conveying one's ideas to someone else. It becomes a meaningful activity when an intended audience begins to matter for a small child. If no need is felt for an audience, acquisition of writing becomes merely attainment of mechanical skill. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि राइटिंग का सही मीनिंग जब आता है जब वो सामने वाला लिखने वाला उसको ऑडियंस है, सही तरीके से ऑडियंस है उसको अप्रिशिएट करने वाली. ठीक है, तो तभी वो एक्चुअली राइटिंग में इंटरेस्ट लेता है. अदरवाइज दैट इज़ द मैकेनिकल स्किल दैट ही इज अटेनिंग. इट इज़ इक्वली ट्रू फॉर प्रीमैच्योरली एक्वायरिंग न्यूमरेसी. मैथमेटिक्स ऑफर्स to a child a means to make sense of the world, but desire to relate to different objects arises with the widening of experience and engagement. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ में एंगेज करना ज़रूरी है,
रादर देन डायरेक्टली हम मैकेनिकली जो बोलते हैं 2+2 4 सिखाना डायरेक्टली, ठीक है. Habituating the child to chant the numbers aloud and then learn to how to manipulate them damages the bridge that connects the numbers with real things or matters of interest and curiosity. ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हार्मफुल हो सकता है. उनकी जो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है चिल्ड्रन में जानने की, वो वहीं पे एक्चुअली होती है. ए कल्चर ऑफ स्पीड परवेट्स ऑल स्पेयर्स ऑफ स्कूल लाइफ. Middle class parents set the norm to this culture by pushing their infants to consume the various products sold in the pedagogy market. Digital equipments is the latest addition to the educational toys. अभी जो हम बोलते हैं कि डिजिटल जैसे कुछ टैबलेट्स होते हैं, स्मार्टफोन में उनको एप्लीकेशंस है, या हम बोलते हैं कि लैपटॉप्स पे भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है. सो दैट इज़ डिजिटल इक्विपमेंट्स. This is the latest addition to this pedagogy market, we can say that. And these middle class parents, they are focusing more on, let's say, ensuring this learning process of child as early as possible through these mechanical means. Although nurseries routinely use the rhetoric of play way, their programs are mostly downward extension of स्कूल. ठीक है, स्कूल मतलब वो एक फॉर्मल वे आ जाता है, रिजिडिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, बट जो 6 साल तक का बच्चा होता है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स इन दैट पीरियड. एंड देयरफॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटिंग टू द रियल वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, by promoting foundational literacy and numeracy as the key educational target of early schooling, we are likely to stress further an already embattled childhood. ठीक है, तो पहले ही चाइल्डहुड हम बोलते हैं कि ऑलरेडी स्ट्रेस, इट इज स्ट्रेस्ड ड्यू टू हाई कंपटीशन हियर, स्पीड कल्चर जो यहाँ पे बात की है. स्कूल में तुमने इतने नंबर लाए, उतने लाए. जैसे आमिर खान की मूवी जो है तारे ज़मीन पर, तो उसमें जैसे दिखाया गया है कि वो जो ईशान होता है वो थोड़ा सा समझने में स्लो होता है, राइट. तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती जल्दी, न्यूमरेसी हो या फिर लिटरेसी हो, वो सारी चीज़ें, या आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन को पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर दे चुके हैं, और 6 साल तक तो एटलीस्ट वो जनरल मतलब घर पे रह के वो नेचुरल चीज़ें सीखते थे. ठीक है, अब उनको स्कूल में भेज के फॉर्मल एजुकेशन में लाके हम कहीं ना कहीं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या लर्निंग एबिलिटी को हैम्पर कर रहे हैं, ऐसा राइटर का मानना है. ओके, so such kind of question can be asked, whether this is the good idea, preschooling. Justify your opinion. So you need to know the other side here. ठीक है, तो जब आप जस्टिफाई करोगे आपके ओपिनियन, तो ये आर्गुमेंट्स आपको ज़रूर होने चाहिए. फाइन. सो द आर्गुमेंट्स आर रिगार्डिंग 3: रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी. ठीक है, तो ये जो स्किल्स है इनके बारे में आपको आर्गुमेंट्स लिखने हैं. एंड देन द कल्चर ऑफ स्पीड, एंड देन we can say formal education. Fine, so you take inputs from this article. Next, making agriculture market reforms successful. Some important inputs for GS3, APMC reforms, or we can say agricultural market reforms, is the part of syllabus agroeconomy. So let us try to understand. It is talking about, in the first part, significance of recent reforms like restrictions of under the Essential Commodity Act has been removed, and now the farmers will be benefit through their private investment in the agriculture. The other two ordinances, like we can say that contract farming, they will help to the farmers to augment the resources. ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, ये एक सिग्निफिकेंट है. मार्केट लेड रिफॉर्म्स है. फाइन. However, there are challenges. For example, first challenge, it is talking about the government since 2016 has many policy reversal in agroeconomy. कैसे 2016 में ई नाम लाया है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दिस वाज द मार्केट बेस्ड फेनोमेनन और mechanism for efficient price discovery to the farmers. However, this was not, let's say, efficient. तो 2018 में फिर से PM आशा स्कीम लॉन्च की. The main objective was to, let's say, assured price to the farmers, and there were 3 phenomenon: public procurement, deficiency payment, and private procurement. The article is saying that private procurement तो हुआ ही नहीं, public procurement तो पहले से ही चल रहा था, और deficiency payment only pilot based project था MP में. ठीक है, तो
हम बोल सकते हैं कि उसका ज़्यादा रीच नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, और फिर से जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र पे शिफ्ट कर दिया है पीएम किसान। हम बोल सकते हैं ये इलेक्टोरल पॉलिसी या गवर्नमेंट का था उस टाइम पे, बजट के टाइम पे, इंटरिम बजट के टाइम पे पीएम किसान को लॉन्च किया है। इट इन्वॉल्व ए फिक्स पेमेंट ऑफ ₹6,000 पर एनम टू ईच फार्म हाउस होल्ड। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात हुई थी। दिस वॉज नॉट एट ऑल मार्केट लेड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है, और उसके बाद जो है अभी रिसेंट जो रिफॉर्म्स आए हैं फिर से मार्केट लेड रिफॉर्म्स है। ओके, सो ये पॉलिसी रिवर्सल कंटिन्यूस होता रहा है, एंड दैट्स वाई सच पॉलिसी रिवर्सल मे नॉट इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स विच लेट्स से अबाउट टू कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो इसलिए दे विल प्ले वेट एंड वॉच अप्रोच हियर. Center state and state state relations here, although the ordinances are passed by the central government, implementation of same vests with the states, and therefore center state let's say coordination and state state coordination is very important, especially जो interstate trade होता है उसके ऊपर. Reforms in the output market alone are not sufficient, it must be supplemented and complemented with liberalization of lease market, better access to credit and insurance market. तो ये दोनों होना चाहिए, क्रेडिट सप्लाई, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जिसको बोला गया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमने देखा था कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स एंड वी कैन से क्रॉप इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स। फाइन, तो ये दोनों चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए सप्लीमेंट्री रिफॉर्म्स में। सो इन कंक्लूजन इट इज़ वेरी गुड स्टेटमेंट, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव मतलब यहाँ पे सेंटर स्टेट जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स, ये जो लास्ट स्टेटमेंट में हमने बात की है कि लीज मार्केट में या क्रेडिट और इंश्योरेंस मार्केट में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आर नेसेसरी टू सक्सेस ऑफ रिसेंट एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स. सो इन सच वे सिमिलर लेट्स से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एनालाइज. तो ये सारे इनपुट्स आपने लिखने चाहिए. फाइन. सो GS3 एग्रो इकोनॉमी, every year the questions are asked from this perspective, APMC reforms and all. तो आपको जो रिसेंट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाता रहता है इस फील्ड में उसका अपडेट रखना है. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ आउटर स्पेस. वेरी गुड आर्टिकल. ये बहुत कम बार लिखे जाते हैं, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जैसे हम ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आता है GS2 में, या फिर हम स्पेसिफिकली GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम रेगुलेशन और गवर्नेंस की बात करते हैं स्पेस के रिगार्डिंग. फाइन. सो नीड ऑफ स्पेस रेगुलेशन एंड गवर्नेंस, तो ये ग्लोबल लेवल पे भी बात कर रहा है और इंडिया के लेवल पे भी बात कर रहा है. ठीक है. सो सेवरल स्पेस इवेंट्स प्लान्ड वेल इन एडवांस हैव प्रोसीडेड अमिडस्ट द टू कोविड-19 पैंडमिक विदाउट मच अटेंशन. जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि एक चाइना का जो था वो मार्स मिशन था, US का एक मार्स मिशन था और UAE का भी मार्स ऑर्बिटर था. तीनों ने मार्स के लिए भेजा है इस साल. द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ट्रिप टू ऑर्बिट एंड कमर्शियल एंटरप्राइज बिल्ड बाय SpaceX, ये भी हमने कवर किया था. फाइन. सो कंप्लीशन ऑफ चाइनीज़ वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. ग्रोथ पोटेंशियल उन्होंने डिस्कस किया है स्पेस सेक्टर का, वर्ल्ड स्पेस का. Technological changes augur well in peaceful use of outer space. Price tag for reaching low Earth orbit has declined by a factor of 20 in a decade. ठीक है, तो ये इसकी वजह से ह्यूमन स्पेस ट्रैवल पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. ठीक है, एंड एप्लीकेशंस जो है पहले मुश्किल माने जाते थे वो अभी एप्लीकेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्ट, $350 billion space market today will touch the 2.7 trillion by 2050. Space industries are likely to follow the let's say path of software industry, जो एक दो डिकेड में ही इतना बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया था. सिमिलरली एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि कैसे ग्रोथ होगा. तो स्टारलिंक, ए कॉन्स्टलेशन बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय SpaceX टू प्रोवाइड द ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस. तो ऑलमोस्ट 10,000 स्मॉल सैटेलाइट लो ऑर्बिट में वो लॉन्च करने वाले हैं. चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 चैलेंजेस यहाँ पे बताए गए. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम. दैट एज द आउटर स्पेस बिकम डेमोक्रेटाइज, कमर्शलाइज, क्राउडेड, द मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क फॉर इट्स गवर्नेंस इज बिकमिंग ऑब्सोलीट. तो ये जो गवर्नेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी जो थी 1967 की वो काफ़ी पुरानी है, जहाँ पे सिर्फ स्टेट लेड एंटिटीज़ का ही बात हुआ था, नॉन स्टेट का नहीं हुआ था. फॉर एग्जांपल
legal framework is state centric, placing responsibility on states alone. However, non-state entities are now in fray for commercial space exploration. ये एक one of the challenge है. States are investing in military space system for communication and navigation to ensure operativity of range of capabilities. Reliance on military on satellite system means the space assets become potential targets. जैसे हमने देखा है कि एंटी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है अभी डेवलप हो चुकी है. इंडिया ने भी मिशन शक्ति में जो है एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट किया है. स्पेस आर्म्स रेस इज डिफिकल्ट टू कर्व. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट एज अ चैलेंज. सो नीड ऑफ स्पेस लेजिस्लेशन इन इंडिया. जैसे इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड एनॉर्मस रिसोर्सेस इन स्पेस प्रोग्राम टिल नाउ एंड इट वांट्स टू फर्दर डेवलप let's say space assets for crucial of which are crucial for India's development. And private participation in space activities recently announced, जैसे इन स्पेस है अभी रिसेंटली अनाउंस किया हुआ गवर्नमेंट ने, तो इट इज़ वेलकम स्टेट इन दिस रिगार्ड. एंड वी नीड टू हैव स्पेस लेजिस्लेशन एनेबलिंग कोहेरेंस अक्रॉस द टेक्निकल, लीगल, commercial, diplomatic, defense goals. Our space vision also needs to address the global governance, regulatory and arms control issues. As space opens up, our space vision needs broadening too. Fine. So such kind of conclusion can be written here. Very good statement here. As space opens up, our space vision needs broadening too. Okay. So here very good inputs. ये challenges जो है आपको जैसे के वैसे लिखने चाहिए. ये तीनों के तीनों challenges जो है ग्लोबल गवर्नेंस इन स्पेस सेक्टर या रेगुलेशन जो बात कर रहे हैं. फाइन. सो सम ट्रीटीज़, आउटर स्पेस ट्रीटी आपको पता होनी चाहिए. वो रेगुलेशन में अब तक एक ही जो मेन ट्रीटी है आउटर स्पेस के लिए, और आउटर स्पेस को एक ग्लोबल कॉमन गुड माना जाता है वेर इन सोवरनिटी किसी स्टेट की वहाँ पे नहीं होगी. ये आपको पता होना चाहिए. फाइन. मूविंग ऑन, प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है. जैसे सुप्रीम कोर्ट अर्ज टू सेटअप 11 जज बेंच ऑन कोटा कैप. Here the arguments were heard on the pleas. जो स्टेट गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो पैरेलल रिजर्वेशन दिया जा रहा है मराठास को, मराठा कम्युनिटी को. ये देखिए मराठा रिजर्वेशन लॉ जो लाया गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेटिशंस अभी सुप्रीम कोर्ट में है. देन सुप्रीम कोर्ट इज़ हियरिंग ऑन लेट्स से दिस स्पेसिफिक पेटिशंस. तो वहाँ पे बोला गया है कि आपने सारे ये पेटिशन सारे स्टेट्स के सुनने चाहिए रिगार्डिंग कैप ऑन दिस कोटा 50% जो बोला गया था इंदिरा साहनी केस में. तो हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी. सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस हैज सेड दैट बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16(4) cannot be identified on the basis of economic criteria alone, but the caste system also needs to be considered. ठीक है. तो Article 16(4) is not an extension to clause 1 but in an instance classification as envisaged in clause 1. Backward classes were different. 16 में जो बोले गए हैं वो 15 से अलग है. ठीक है. 15 में जो है वो इक्वालिटी की बात होती है और 16 में जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है. ठीक है. Concept of creamy layer was laid down and it was directed that the creamy layer must be excluded while identified backward classes. ठीक है. तो creamy layer और non creamy layer जो concept है स्पेसिफिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो अप्लाई होगा रिजर्वेशन में. फाइन. इट ऑल्सो अलाउज क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड. रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सेड 50% एंड मोर ओवर रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन शैल नॉट बी अलाउड. ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता होने चाहिए. एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्राइटेरिया were to be raised in Supreme Court only. तो high courts are barred from let's say listening to this reservation criteria. जो important है हम देखते हैं कि constitutional provisions से related है, and that's why Supreme Court wants to hear that now. And that's why अभी ये 9 bench था तो अभी 11 bench जो है बड़ा होना चाहिए और उसने ये cap जो है 50% वाला उसके regarding देखना चाहिए. The arguments are like this case was 30-year old. बहुत पुरानी है, अभी नए चीज़ें आनी चाहिए उसमें, ऐसा आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है. फाइन. सो इससे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस.
तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल बी अलाउड जो है वो गलत है, शैल नॉट बी अलाउड ऐसा लिखा गया था, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फाइन। Tigers to dance in the cyberspace in this Onam. It is talking about Pulikali, the tiger dance, a folk dance in Kerala, especially Thrissur district. Colorful part of Onam celebration and recreational folk art from the state of Kerala. It is performed by the trained artists to entertain people on the occasion of Onam, an annual harvest festival celebrated mainly in the state of Kerala. So human tigers, their body painted bright yellow with the black stripes akin to big cat. आप देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक है। तो वो डांस करते हैं और परफॉर्म करते हैं। फाइन। सो ये कब शुरू हुआ था? 200 साल पहले ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था। संगथन तंपुरन, द रूलर ऑफ योर, या फिर ये जो कोचिन का रीजन जो है वहाँ के रीजन का वो रूलर था, इंट्रोड्यूस दिस पुलिकली ओवर 2 centuries ago as a street art form. Later it was sidelined due to, let's say, obscene, but it was accepted with the introduction of guidelines and rules. फाइन। तो प्रीलिम्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पुलिकली इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ कर्नाटका स्टेट? नो। तो ये है केरला का पॉपुलर फॉर्म, टाइगर डांस भी बोला जाता है, और वो ओनम के ओकेजन में। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो आपको लॉजिक भी लगाने आना चाहिए कि ओनम जो है वो फेस्टिवल जनरली केरला स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के वक्त हमें जब कोई पर्टिकुलर चीज़ पता नहीं है तो दूसरे ऑप्शन से हमें वो लॉजिक यूज़ करने आना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। सो दैट्स वाई द आंसर इज 2 and 3। एंड लास्टली द गुजरात टॉप्स एक्सपोर्ट इंडेक्स नीति आयोग। तो ये कौन सा है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। So Gujarat topped in this index. This is prepared by the Niti Aayog. Second and third is Maharashtra and Tamil Nadu. ठीक है, तो पहला है गुजरात, second Maharashtra and third is Tamil Nadu. And the index ranks states on the basis of 4 pillars. One is policy, second is business ecosystem, third is export ecosystem, and fourth is export performance. So overall coastal states emerged as the best performance. That is good thing, हमें समझ में आ सकता है। 6 out of 8 coastal states featuring in the top 10 ranking. However landlocked states भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे राजस्थान perform best followed by तेलंगाना and हरियाणा। Himalayan states में उत्तराखंड first है। Across union territories Delhi is the first. At the same time some challenges, the article report or the index is providing fundamental challenges faced by states in export promotion, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अमंग द स्टेट्स, पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपोर्ट्स। देर इज नीड टू एम्फसाइज की स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, जैसे कि ए जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, and create state level engagement for economic diplomacy. These strategies could be supported by revamped design and standard of local products by harnessing innovative tendencies. ठीक है, तो adequate support by the center होना चाहिए states को in the export infrastructure development, research and development activities, all these things. ओके तो आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? नो, इट इज़ रिलीज बाय नीति आयोग। कोस्टल स्टेट्स परफॉर्म वेल, ये तो लॉजिकली भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र कंफ्यूज हो सकते हैं, रादर इधर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गुजरात रैंक फर्स्ट इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात हैज़ बीन ऑलवेज लेट्स से हैविंग और लीडिंग द इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम इंडिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता है। सो दैट्स वाई द आंसर इज 2 ओनली। सम इम्पॉर्टेंट कैप्शंस एंड कोटेशंस हियर, यू कैन सी दैट ये सारे जो कैप्शंस एंड कोटेशंस है वो फर्स्ट आर्टिकल जो हमने दिखा था एजुकेशन के बारे में और स्पेसिफिकली प्री स्कूलिंग के बारे में, तो आपको ये GS2 और essay में आप यूज़ कर सकते हैं। फाइन। So these were important articles from today's newspaper. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these articles, especially mains related articles wherein perspective building is focused by Ansari sir and team,
you can contact Lukman IAS to enroll that course. Thank you.